A very good morning to all students. As we are seeing in this particular lecture, we will know about the importance of vibration analysis. यानी कि जो वाइब्रेशन एनालिसिस अगर हम करते हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. In today fast-paced competitive business world, manufacturers are seeking every competitive advantage they possible can to increase their production and minimize cost while maintaining product quality. जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस टाइप का एनवायरनमेंट सर्च कर रहे हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, कॉस्ट उनकी मिनिमम हो. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट विद इन ए मशीन, अगर मशीन के अंदर रिड्यूसिंग इक्विपमेंट फेलियर के जो इक्विपमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हैं, उनके फेलियर को रिड्यूस करना है. अनशेड्यूल्ड डाउन टाइम इज़ इंक्रीजिंगली डिमांडेड ऑफ कंडीशन monitoring technologies. Then due to these all reasons the vibration analysis is important. Next one is vibration analysis has proven to be one of the most effective tool for identifying mechanical and electrical fault within the machinery. तो वाइब्रेशन एनालिसिस मशीनरी के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फॉल्ट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज मोस्ट वाइब्रेशन प्रोग्राम यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड ऑफलाइन मॉनिटरिंग. ऑफलाइन प्रोग्राम रिक्वायर द रिसोर्सेज ऑफ ट्रेंड टेक्नीशियन टू वॉक फ्रॉम मशीन टू मशीन टू कलेक्ट द वाइब्रेशन डेटा. यानी जितने भी ऑफलाइन प्रोग्राम्स हैं उसमें जो एक ट्रेंड टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है, वो ट्रेन टेक्नीशियंस एवरी मशीन पे जाके जो वाइब्रेशन का डेटा है उसको कलेक्ट करता है. द प्राइमरी गोल ऑफ वाइब्रेशन एनालिसिस इज़ टू आइडेंटिफाई फॉल्ट विद इन ए मशीन. तो जो भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वाइब्रेशन एनालिसिस का वो मशीन के अंदर फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना होता है. देन अलर्ट पर्सनल दैट सम टाइप ऑफ एक्शन नीड टू अकर. और उसके बाद जो मेंटेनेंस इंजीनियर है उसको अलर्ट करना होता है कि भाई इसमें वाइब्रेशंस एक्सीड हो रहे हैं, देन वी नीड टू डू सम एक्शन अगेंस्ट इट. नेक्स्ट वन इज ए मशीन क्रिटिकलिटी, its risk priority and its failure mode establish the frequency required. However, far too often frequency is determined by the availability of local contractor, internal staffing, or even worse on how much money will be saved if the frequency is changed from monthly to quarterly. Next one, as we are seeing, this is the diagram which is showing the requirement of the measurement of the vibrations on board decision, machine shutdown or alarm closings. These are the diagrams. Today's online system have the ability to provide continuous monitoring and can send alarm notification which can be incorporated into a site's process control system, so operate are alerted of a problem. ठीक है, तो वाइब्रेशन एनालिसिस सिस्टम टुडे also have the ability to monitor and alarm of process data such as temperature, pressure, voltage, current, flow or speed, and can provide alarming if a process measurement goes outside of a predefined range. Next one, some of today's online system can incorporate onboard logic and decision making, and some vendors offer machine diagnostics so that data is analyzed and screened for alarm violation automatically. Data storage can be accomplished by the end user locally, or the data can be stored and accessed by the क्लाउड. नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स IIoT इज चेंजिंग द वे वाइब्रेशन डेटा इज व्यूड एंड मैनेज्ड. डेवलपमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, स्मार्ट मशीन्स, एम्बेडेड इंटेलिजेंसी, machine learning, data analytics are changing and significantly affecting how condition monitoring data is collected, processed
and presented to user। तो ये सारी आपकी डिफ़िकल्टी है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन टर्मिनोलॉजीज कंसिस्ट ऑफ these important points। one is periodic vibration, another one is the time period, cycle, frequency, amplitude, natural frequency, the fundamental mode of vibration, degree of freedom, simple harmonic, damping, resistance, resonance or mechanical system। so these are the some major points of the terminology that we have to discuss। first one is periodic motion। The motion which repeat itself after an equal interval of time is called periodic motion। कोई भी मोशन अगर अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करती है तो वो पीरियोडिक मोशन कहलाती है। टाइम पीरियड, दिस इज डिफाइंड एज द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी किसी भी मोशन को एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। इसको नॉर्मली हम सेकेंड के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज द साइकिल, इट इज़ मोशन कंप्लीटेड ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। यानी साइकिल क्या होता है, ये एक मोशन है जो कंप्लीट करता है कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वन टाइम पीरियड में। नेक्स्ट वन इज़ द फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल्स डिस्क्राइब इन 1 सेकेंड, के पर सेकेंड में कितनी बार आप उस पर्टिकुलर मोशन को रिपीट कर रहे हैं। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट्स क्या होती है, हर्ट्ज होती है। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कोई भी बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकती है वो उसका क्या कहलाता है, दैट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट वन इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम आफ्टर गिविंग इट्स एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट द बॉडी स्टार्ट वाइब्रेटिंग। The vibration is called as free vibration and the frequency is called natural frequency। This is expressed in radian per second or hertz। Next one is the fundamental mode of vibration। The fundamental mode of vibration is the model having the lowest natural frequency। ऐसा मॉडल जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, लोएस्ट हो, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट वन इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन of a system at any instant is known as degree of freedom। Next one is simple harmonic motion, the motion of the body to and fro about a fixed point is called simple harmonic motion। Next one is the damping, it is resistance to the motion of a vibrating body। यानी कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी होती है तो उसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है वो क्या कहलाता है, डैम्पिंग। Next one is the resonance, when the frequency of external excitation omega is equal to the natural frequency of the vibrating body, the amplitude of vibration become excessively large। This concept is called resonance। यानी जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन इक्वल हो जाती है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन इक्वल हो जाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, या फिर हम बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ एन के, तब कंडीशन ऑफ वाइब्रेशन अकर होती है जिसमें एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होता है। दिस इज द मैकेनिकल सिस्टम, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मास, स्टिफनेस एंड डैम्पिंग आर नोन एज मैकेनिकल सिस्टम। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें मास होता है, डैम्पिंग होती है, उसको मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम डिफाइन कर चुके हैं कि द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ ए सिस्टम एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहते हैं, सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं, ये एक स्प्रिंग है और ये एक मास है, इससे अटैच है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। यहाँ पर 2 स्प्रिंग है, ये मास से अटैच है, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है क्योंकि यहाँ 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, x1, x2 और x3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है इसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए, इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 3 होती है। नेक्स्ट वन इज द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की मोशन को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, दैट इज थीटा। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी बच्चों, आपकी 1 होगी।
ऐसे ही स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 1 होती है। स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली ये एंगुलर मोशन भी करेगा, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2, दिस वन। और ये फ्लेक्सिबल की कैंटिलीवर बीम हैज़ इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अगर कोई कैंटिलीवर बीम है तो उसके हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, तो इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इनफाइनाइट होगी। और थैंक यू वेरी मच।